Hello dear, welcome to this lecture. In this lecture, we will discuss about total red blood cell count. First of all, we see the red cell. Mature red cell is a circular biconcave disc containing hemoglobin and is bound by the cell membrane. When we see the red blood cell on peripheral blood smear, they appear as pale red cells with central 1/3 pallor, where the upper and lower membrane surface closely meet together. When we talk about the morphology of the red blood cells, there are two types of red blood cell. First one is young, healthy red blood cell, and the second one is aged red blood cell. Young, healthy red blood cells are quite flexible and highly deformable so that they can easily pass through the narrow capillary buds, and after passing through the capillary buds, they regain their morphology, original morphology. On the other side, the aged red blood cells become more rigid and less deformable so that they are removed from the circulation due to presence of reticuloendothelial system in the spleen. When we see the size, when we talk about the size of the red blood cell, normal size of the red blood cell is from 6.7 to 7.7 micrometer in diameter. And lifespan of normal red blood cell is 110 to 120 days. After 110 to 120 days, aged or old red blood cells are removed from the blood circulation in the spleen. Now we see the definition of total red blood cell count. Total number of erythrocyte mean red blood cell. Total number of erythrocyte in 1 liter of blood is called total red blood cell count. 1 लीटर ब्लड के अंदर जितने भी आपके आरबीसीज होंगे, that is called total red blood cell count. There are two types of method used to count the red blood cell in 1 liter of blood. First one is recommended method, in which we use automated hematology analyzer, and the second one is visual method, in which we use hemocytometer. Hemo mean blood, cyto mean cell, meter mean measurement. Hemocytometer is a manual method that is used if automated hematology analyzer is not available in the laboratory. अगर हमारे पास laboratory के अंदर automated hematology analyzer available ना हो, तो then we use hemocytometer or visual method. But the drawback of the visual method is that the result given from the visual method is inaccurate. Now we start how to count the red blood cell. इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट में सबसे पहले हमारे पास आरबीसी पाइपेट होनी चाहिए, having red bead or graduated Siley pipette 20 microliter or any calibrated pipette capable to measure 20 microliter blood sample. हमारे पास या तो आरबीसी पाइपेट होनी चाहिए, या फिर हमारे पास कोई साइली जो पाइपेट होती है वो ग्रेजुएटेड होती है, उसके अंदर हम 20 माइक्रोलीटर ब्लड को मेजर किया जा सकता है, या फिर हम कोई भी एनी अदर कैलिब्रेटेड पाइपेट कैन बी यूज्ड to measure 20 microliter of blood sample. जिस तरह अब ये डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि आप अगर बी डायग्राम के अंदर आप आरबीसी पाइपेट को देख सकते हैं कि इसके अंदर 0.5 का मार्क जो है वो यूज किया जाता है जब हम इसकी आरबीसी की डाइल्यूशन बनाते हैं आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड के साथ. सबसे पहले या तो हमारे पास आरबीसी पाइपेट हो, या फिर हमारे पास साइली पाइपेट हो, या फिर हमारे पास कोई भी दूसरी कैलिब्रेटेड पाइपेट हो जिससे हम 20 माइक्रोलीटर ब्लड को मेजर कर सकें. सेकंड नंबर पे हमारे पास इंप्रूव न्यू बार चैम्बर होना चाहिए विद कवर स्लिप. ये न्यू बार चैम्बर को हम हीमोसाइटोमीटर भी बोलते हैं. हीमो मीन ब्लड, साइटो मीन सेल, मीटर मीन मेजरमेंट. हीमोसाइटोमीटर इज यूज्ड टू काउंट द रेड ब्लड सेल इन ब्लड. हमारे ब्लड के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल होते हैं उनको काउंट करने के लिए हम न्यू बार चैम्बर को यूज करते हैं, और इसके साथ हमारे पास कवर स्लिप होना चाहिए, जिस तरह ये डायग्राम के अंदर न्यू बार चैम्बर दिखाया गया. अब न्यू बार चैम्बर के अंदर यहाँ पे माउंट होता है, ठीक है, और जो सेपरेट करता है राइट और लेफ्ट साइड को, और इसके दोनों अतराफ के अंदर यहाँ पे जो बॉक्सेस बने होते हैं, जिस तरह अगर हम इसको जूम करके देखें तो ये बॉक्सेस आपको राइट साइड पे नजर आ रहे होंगे कि टोटल 9 लार्ज बॉक्सेस होते हैं, और ईच बॉक्सेस इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू मीडियम, स्मॉल एंड स्मॉलेस्ट बॉक्सेस. That will be discussed in next slide. थर्ड नंबर पे हमारे पास रेड सेल डाइल्यूटिंग फ्लूइड होना चाहिए. ये हमारे पास या तो ये कमर्शियली प्रीपेयर्ड डाइल्यूटिंग फ्लूइड भी यूज कर सकते हैं, और अगर हम इसको मैनुअल खुद अपनी लेबोरेटरी के अंदर बनाना चाहते हैं तो उसका
आसान तरीका है कि 3.2 ग्राम सोडियम सिट्रेट लें और 1 ml फॉर्मेल्डिहाइड लें और इसको 100 ml डिस्टिल्ड वाटर के अंदर मिक्स करके हम रेड सेल डायल्यूटिंग फ्लूइड बना सकते हैं। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास माइक्रोस्कोप होनी चाहिए। तो टोटल रेड ब्लड सेल काउंटिंग के जो रिक्वायरमेंट है, अगर हम इसको मैनुअल परफॉर्म करना चाहते हैं और लेबोरेटरी के अंदर हमारे पास ऑटोमेटेड हेमाटोलॉजी एनालाइजर अवेलेबल नहीं है, तो सबसे पहले हमारे पास आरबीसी पाइपेट होनी चाहिए, दूसरे नंबर में हमारे पास न्यूबार चैम्बर होना चाहिए, थर्ड नंबर पे हमारे पास रेड सेल डायल्यूटिंग फ्लूइड होना चाहिए और फोर्थ नंबर पे माइक्रोस्कोप होनी चाहिए। नो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसीजर। अब हम इसके प्रोसीजर को डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास आरबीसी पाइपेट होती है, तो सबसे पहले क्या करना है कि हमारे पास जो आरबीसी पाइपेट होती है उसके ऊपर जो मार्क 0.5 का लगा होता है, 0.5 मार्क तक हम उसमें जो ब्लड है उसको ड्रा करेंगे। जिस तरह ये डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर ब्लड मौजूद है और इससे हम ड्रा कर रहे हैं। ये हमारे पास आरबीसी पाइपेट है और इसके अंदर रेड बीड मौजूद है और इसके यहाँ पर 0.5 मार्क होता है और हम इससे ब्लड को 0.5 मार्क तक इसके अंदर हम फिल करेंगे, जिस तरह ये जूम डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं। सेकंड नंबर पे क्या होता है, क्या अब ये जो जब हम इसके अंदर 0.5 मार्क तक ब्लड को ले लेते हैं और उसके बाद हम इस पाइपेट को ट्यूब के अंदर से रिमूव करते हैं और इसको इसके जो माउथ होता है उसको हम अच्छे से क्लीन करते हैं और इसकी जो साइड्स होती हैं उनको अच्छे से क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद अब इसमें जो 201 वाला जो मार्क होता है, जिस तरह हमने आरबीसी ये जो 101 मार्क तक जो है, अब हम इसके अंदर डायल्यूटिंग फ्लूइड लेंगे। 0.5 मार्क तक हमने ब्लड लेना है, ठीक है, और ब्लड लेने के बाद हम इसको टेस्ट ट्यूब से रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद इसकी जो साइड और माउथ जो है उसको अच्छे से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद आप इसी से नेक्स्ट जो है हम 101 मार्क तक हम इसके अंदर डायल्यूटिंग फ्लूइड को फिल करेंगे। अब इसके अंदर ये रेड बीड होती है, इसलिए हम इसको रेड बीड आरबीसी पाइपेट भी बोलते हैं। ड्रा आरबीसी डायल्यूटिंग फ्लूइड अप टू मार्क 101 है और जब ये 101 मार्क तक हम इसके अंदर ब्लड फिल करेंगे तो अब ये 1/200 डायल्यूशन हो जाएगी कि हमारे पास 0.5 तक हमने ब्लड लिया और 101 तक डायल्यूटिंग फ्लूइड लिया। जब 101 तक हम डायल्यूटिंग फ्लूइड के अंदर 0.5 मार्क तक जो ब्लड है वो इसके अंदर 1/200 की डायल्यूशन ब्लड की बन जाएगी। और या फिर इसका अगर हमारे पास आरबीसी पाइपेट अवेलेबल ना हो तो देन हम another method that can be used to make 1/200 dilution of blood with RBC diluting fluid। उसके लिए हम क्या करते हैं कि 20 माइक्रोलीटर ब्लड लेते हैं और इसको मिक्स कर देते हैं 4 ml जो डाइल्यूट होता है उसके अंदर। इस तरह से 4 ml डाइल्यूट मीन के 4000 जो है माइक्रोलीटर हम डाइल्यूट लेते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसके अंदर हम 20 माइक्रोलीटर ब्लड को मिक्स करके 1/200 की डाइल्यूशन बना लेते हैं। तो इस तरह हम ब्लड को जो हमारे पास आरबीसी डायल्यूटिंग फ्लूइड था उसके साथ इसकी 1/200 की डायल्यूशन बनाते हैं। उसके बाद जेंटली रोटेट द पाइपेट बिटवीन थंब एंड फोर फिंगर टू मिक्स वेल। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस पाइपेट को आरबीसी पाइपेट को या फिर टेस्ट ट्यूब को हम उस अच्छे से इसको रोटेट करते हैं और इसमें ब्लड और डायल्यूटिंग फ्लूइड वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम क्या करते हैं कि अब हम अपने जो न्यू बार चैम्बर को लेते हैं। न्यू बार चैम्बर लेने के बाद उसके ऊपर हम कवर स्लिप को रखते हैं, प्लेस कवर स्लिप और न्यू बार चैम्बर, और इसके ऊपर हम कवर स्लिप को रखेंगे न्यू बार चैम्बर के ऊपर। उसके बाद चार्ज द न्यू बार चैम्बर फ्रॉम अदर साइड बाय डाइल्यूटेड ब्लड। अब ये जो पाइपेट थी आरबीसी पाइपेट के अंदर जो ब्लड था 0.5 मार्क तक लिया था और 101 मार्क तक हमने डाइल्यूटिंग फ्लूइड लिया था। डाइल्यूटिंग फ्लूइड और ब्लड की जो डाइल्यूशन है वो 1/200 के थे। अब ये डाइल्यूटेड ब्लड को यूज करेंगे और इसमें यूज करने का तरीका ये होता है कि इसके जो फर्स्ट 4 to 5 ड्रॉप्स होंगे उसको डिस्कार्ड कर देंगे और फिर फर्दर जो ब्लड उससे हम जो हमारे पास जो न्यू बार चैम्बर होता है उसको ऑन अदर साइड हम इसको चार्ज करेंगे, जिस तरह ये डायग्राम के अंदर दिखाया गया। और इसमें इस चीज का ख्याल रखना कि इसमें एयर बबल्स नहीं जाने चाहिए। जब हम न्यू बार चैम्बर को चार्ज करेंगे उसके बाद वेट फॉर 2 मिनट टू अलाउ द सेल्स टू सेटल। 2 मिनट के लिए हम न्यू बार चैम्बर को रख देंगे ताकि इसके अंदर जो आरबीसीज हैं वो सेटल डाउन हो जाए। देन काउंट द सेल्स यूजिंग 40x ऑब्जेक्टिव इन द सेंट्रल लार्ज डबल रूल्ड स्क्वायर ऑफ द न्यू बार चैम्बर। अब क्या करेंगे कि जब आफ्टर 2 मिनट हम 40x के ऊपर जाके हम अपने रेड ब्लड सेल को काउंट करेंगे। तो न्यू बार चैम्बर के अंदर मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि 9 बॉक्सेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
और इसमें जो सेंट्रल जो बॉक्स होता है, सेंट्रल जो लार्ज बॉक्स होता है, इसके जो फर्दर जो सब डिवाइडेड जो स्मॉलेस्ट बॉक्सेस होते हैं, इनके जो राइट के ऊपर टॉप और लेफ्ट के ऊपर टॉप, इसी तरह बॉटम में राइट और लेफ्ट के ऊपर जो कॉर्नर पे है, और सेंटर वाला हम इसके अंदर जो रेड कलर के दिखाया गया कि इसके अंदर हम आरबीसीज को काउंट करते हैं। जो सेंट्रल जो लार्ज बॉक्स होता है उसके 5 जो स्मॉल बॉक्सेस होते हैं उनके अंदर हम आरबीसी को काउंट करते हैं। अच्छा, अब इसमें जो कैलकुलेशंस है वो किस तरह से करते हैं, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि जो टोटल हमारे पास ये जो हमारे पास न्यू बार चैम्बर जो होता है उसके ऊपर जो बॉक्सेस बने होते हैं वो टोटल 9 होते हैं, और एक बॉक्स की जो लेंथ होती है वो 1 मिलीमीटर होती है, और उसकी विड्थ जो है वो भी 1 मिलीमीटर होती है। क्योंकि एक साइड के ऊपर 3 बॉक्सेस होते हैं तो इट मींस कि इसके अंदर 3 मिलीमीटर इसकी लेंथ है और इसी तरह 3 मिलीमीटर इसकी विड्थ है, अगर हम ओवरऑल सारे की बात करें। अच्छा, अब इसमें अगर ये जो स्मॉल जो पूरा बॉक्स है जो 3 बाय 3 मिलीमीटर है, इसको सब डिवाइडेड इनटू 9 स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है, 9 के अंदर इसको डिवाइड किया। अब एरिया जो है एक बॉक्स का, एक स्मॉल बॉक्स जो है, एक जो लार्ज बॉक्स है इसका एरिया कितना बनेगा, एरिया का फार्मूला था लेंथ इनटू विड्थ। अब एक बॉक्स की जो लेंथ है वो 1 मिलीमीटर होती है और इसकी विड्थ भी 1 मिलीमीटर होती है, तो इस तरह एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर स्क्वायर। याद रखना है कि लेंथ, विड्थ या डेप्थ मिलीमीटर के अंदर होगी, एरिया स्क्वायर के अंदर होगा मिलीमीटर स्क्वायर, और जो वॉल्यूम होगा वो मिलीमीटर क्यूब के अंदर होगा। अब जो लार्ज बॉक्स है इसका एरिया बन गया 1 मिलीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरह अब क्योंकि हमने आरबीसी जो काउंट करने वो सेंट्रल जो लार्ज बॉक्स है इसके अंदर करने हैं, और इसके जो फर्दर जो सब डिवाइडेड इनटू 25 स्मॉल बॉक्सेस, ये 25 जो है स्मॉल 1 2 3 4 5 और इसी तरह 1 2 3 4 और 5, ये 25 स्मॉल बॉक्सेस के अंदर फर्दर सब डिवाइडेड है। इसी तरह एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर, अब एक का जो स्मॉल स्क्वायर जो है, एक स्मॉल बॉक्स जो है इसका एरिया कितना होगा, क्योंकि एक पूरा जो लार्ज बॉक्सेस है वो 5 के अंदर डिवाइड हो गया, तो इट मींस कि इसकी जो लेंथ है वो 5th है टोटल की, तो 1/5, और इसकी जो विड्थ है वो भी इसी तरह टोटल जो इसकी जो विड्थ थी वो 1 मिलीमीटर थी, अब एक जो है वो डिवाइड हो जाएगा 5 के अंदर, तो इसकी जो विड्थ है वो बन जाएगी 1/5, तो एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर वो हो जाएगा 0.04 मिलीमीटर स्क्वायर। अब जो स्मॉल जो रेड कलर का आपको बॉक्स नजर आ रहा है इसका जो एरिया है वो है 0.04 मिलीमीटर स्क्वायर। अब हम इसका वॉल्यूम मेजर करना चाहते हैं, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है इसकी डेप्थ जो है वो ऑलरेडी नोन होती है, वो 0.1 मिलीमीटर होती है, और इसका वॉल्यूम जो होता है वो लेंथ, विड्थ और डेप्थ, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। तो इसमें क्या होता है कि इसका हमारे पास लेंथ नोन है 1/5 है, और इसकी विड्थ जो है वो भी 1/5 है, और इसकी जो डेप्थ है वो ऑलरेडी नोन है, वो 0.1 मिलीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्क्वायर, अब इस एक जो स्मॉल स्क्वायर है इसका एरिया था 0.04 मिलीमीटर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम मेजर करेंगे 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय 0.1, दैट इज इक्वल टू 0.004 मिलीमीटर क्यूब। 1 millimeter cube is equal to 1 microliter. Keep in mind that 8 millimeter cube equal होता है 1 microliter, so that 0.004 millimeter cube is equal to 0.004 microliter. No, in this way we got the volume of small scale. इस तरह हमने इसका वॉल्यूम मेजर कर लिया है। अब हम वॉल्यूम ऑफ 5 स्मॉल स्क्वायर, जब एक का जो वॉल्यूम है वो 0.004 है, अब 5 जो स्मॉल स्क्वायर है उनका वॉल्यूम कितना होगा, हम 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 0.02 माइक्रोलीटर। अब हमने जो रेड ब्लड सेल काउंट किए हैं वो 5 स्मॉल बॉक्सेस के अंदर किए हैं, 1 2 3 4 और 5, इन पांचों का जो वॉल्यूम है वो है 0.02 माइक्रोलीटर। अब इन पांचों के अंदर जो हमने 40x ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर रेड सेल्स काउंट किए हैं वो है n। अब हमने इसके अंदर जो डाइल्यूशन यूज किया, जो हमने जिस तरह मैंने आपको आरबीसी पाइपेट के बारे में जब बताया था कि 0.5 मार्क तक हमने ब्लड लिया था और 101 मार्क तक हमने
उसके अंदर डायल्यूटिंग फ्लूइड लिया था, तो इससे क्या हुआ कि जो ब्लड और डायल्यूशन जो डायल्यूटिंग फ्लूइड था उसके साथ जो डायल्यूशन हुई है वो 1/200 की हुई है। तो अब इसमें जो नंबर ऑफ आरबीसी हम काउंट करेंगे वो इट मींस कि 200 टाइम्स डायल्यूटेड है, यानी कि इसमें जो 200 टाइम्स जो आरबीसी नंबर ऑफ आरबीसी है वो वैल्यू कम होगी। अच्छा, अब क्योंकि हमने जिस तरह डेफिनेशन के अंदर डिस्कस किया था कि टोटल नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट इन 1 लीटर इज कॉल्ड टोटल नंबर ऑफ टोटल रेड ब्लड सेल काउंट। अब इसमें जो हमारे पास वॉल्यूम है वो माइक्रोलीटर के अंदर है, तो अब हमने माइक्रोलीटर को कन्वर्ट करना है लीटर के अंदर। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml and 1 ml is equal to 1000 microliter. In this way 1 liter become equal to 10 raised की पावर 6 10 into 6 माइक्रोलीटर। 1 लीटर के अंदर 10 into 6 माइक्रोलीटर होंगे। तो अब जो इसका फार्मूला बनेगा, सबसे पहले n मींस कि जो हमने 5 जो स्मॉल बॉक्सेस हैं, जो 5 स्मॉल स्क्वायर्स हैं, इनके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ आरबीसी काउंट किए हैं दैट इज कॉल्ड n। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 200 के साथ, क्योंकि हमने इसकी जो डायल्यूशन थी वो 200 टाइम्स बनाई थी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये माइक्रोलीटर को जब हम लीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 1 लीटर के अंदर 10 रेज की पावर 6 माइक्रोलीटर होते हैं। तो हम 10 रेज की पावर 6 इससे क्या होगा, ये माइक्रोलीटर लीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो 5 स्मॉल स्क्वायर के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज हैं वो n है, इसकी जो डायल्यूशन यूज की वो 200 की है, और 10 रेज की पावर 6 जो है वो हमने क्योंकि माइक्रोलीटर को लीटर के अंदर कन्वर्ट किया इसलिए, और 0.02 इन 5 स्मॉल जो बॉक्सेस हैं इनका वॉल्यूम जो है 0.02 माइक्रोलीटर। ये जो वॉल्यूम है ये 5 स्मॉल बॉक्सेस का टोटल वॉल्यूम है। तो इस तरह से हम जो टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज हैं वो मैनुअल न्यूबार चैम्बर को यूज करते हुए काउंट करते हैं। अब इसकी जो रेफरेंस रेंज है अडल्ट मेल के अंदर इसकी नॉर्मल वैल्यू 4.5 टू 5.5 इंटू 10 रेज की पावर 12 पर लीटर, और अडल्ट फीमेल के अंदर 3.8 टू 4.8 इंटू 10 रेज की पावर 12 पर लीटर इसकी होती है। अब जब हम इसकी इंटरप्रिटेशन की बात करें कि टोटल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन 1 लीटर, जो इसमें किन केसेस के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज वो डिक्रीज होते हैं और किन केसेस के अंदर टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज इंक्रीज होते हैं। डिक्रीज कब होते हैं? ब्लड लॉस, जब ब्लड लॉस होगा ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स डिक्रीज, वो भी डिक्रीज हो जाएंगे। रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन डिक्रीज, अगर ब्लड जो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन वो डिक्रीज होगी ड्यू टू सिकल सेल एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड डिजीज ऑफ द बोन मैरो एंड स्टेम सेल। तो इन केसेस के अंदर क्या होगा कि रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी। एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, स्टोमिक अल्सर में क्या होगा कि जो स्टोमिक के अंदर जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा टोटल नंबर ऑफ आरबीसी डिक्रीज हो जाएंगे। इसी तरह ब्लीडिंग के अंदर, लप्स के अंदर, हॉगन लिम्फोमा के अंदर, और इसके अलावा ल्यूकीमिया के अंदर और मल्टीपल माइलोमा के अंदर क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज डिक्रीज हो जाएंगे। और अब किन केसेस के अंदर टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज इंक्रीज होंगे, इसमें डिहाइड्रेशन है। जब डिहाइड्रेशन में ऑब्वियसली जब जो फ्लूइड है फ्लूइड लॉस होगा तो उस केस के अंदर क्या होगा कि जो टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज वो इंक्रीज कर देंगे। इसी तरह लंग डिजीज है, अगर हमारी बॉडी को ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर ना मिले तो उस केस के अंदर भी जो टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज वो इंक्रीज हो जाएंगे। हाई अल्टीट्यूड और हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, ब्लड डिसऑर्डर, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, और इन केसेस के अंदर जो है टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज इंक्रीज हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। Goodbye, take care.